Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So welcome back, and let me continue with this particular topic. What have we been doing for the last two lectures? A chapter by the name of Bill of Exchange. It in your examination काफ़ी कीमती चैप्टर है. ओके, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि you get maybe 1-2 marks objectives, you get a 5 marks something called as specimen. Specimen मतलब एक document, and over and above that around a 10 mark full question. So गिन चुन के 15 to 17 mark तो यही आता है. Extremely important topic. हाँ. Now in Bill of Exchange till last time आपको क्या सिखाया गया था? मार्केट, बायर, सेलर, कैश ट्रांजैक्शन. अगर कैश डील होगा तो दुकानदार बहुत खुश होता है. अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता है तो उसको दूसरा उपाय ढूंढना पड़ता है, और वो दूसरा उपाय क्या है? एक डॉक्यूमेंट उसको प्रिपेयर करना पड़ता है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज. ओके, वो बिल ऑफ एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा प्रोमिसरी नोट और चेक, इनको भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. निगोशिएबल का मतलब है एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक बंदे से दूसरे बंदी तक वो डॉक्यूमेंट जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है. आज मैं इसका मालिक हूँ, कल आप इसके मालिक बन सकते हो. ओके, हमने सेक्शन 5 एक बार पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. सेक्शन 4 मैंने चर्चा नहीं की है क्योंकि वो प्रोमिसरी नोट पर डिपेंड करता है. कुछ लेक्चर्स के बाद में मैं एक लेक्चर लूँगा प्रोमिसरी नोट आपको पढ़ाने के लिए. ये सारा तामझाम जो है, अगर आपने कभी फ्यूचर में कानून की पढ़ाई की, लॉ लिया, तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलावा तो और बहुत ज़्यादा कानून आप सीखोगे. हाँ, हर क्वेश्चन में 2 किरदार कम से कम रहेंगे. एक ड्रॉवर, एक ड्रॉई, एक सेलर, एक बायर. मैक्सिमम काम ये डॉक्यूमेंट में सेलर का है. जो बायर है उसका काम सिर्फ साइन करने का है, एक्सेप्ट करने का है, अगर जो सेलर ने लिखा वो सही है. कभी कभी जो सेलर ने लिखा उसमें गड़बड़ भी हो सकता है, जानबूझ के किया गया गड़बड़, या कभी कभी मिस्टेक वाला गड़बड़. आज हम वो भी देखेंगे. वी आर सॉल्विंग ओनली 2 प्रॉब्लम्स,
and I repeat, for both the problems, I want your tayyari to be done. And what does your tayyari mean? This bada dabba, chote do dabbe, one block, one box for writing stamp and one for writing rupees. Okay, now let me take you back to what this completely looks. Well, the entire bill of exchange looks something like this. Now when I say format, मतलब इतना ready आपको रखना है. Okay, all of this is maximum done by the seller. The buyer does only one job, which is nothing but the acceptance of it, जो इसके बाद ये स्क्रीन पे आने वाला है. ओके, हमको ये प्रैक्टिकली करना है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. कौन कौन है और आज कौन एक्स्ट्रा है? लेट्स सी. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. वी आर स्टार्टिंग. Drawer. Hey, he is the seller. He is the creditor. Tell yourself. Speak it so that this listens and this remembers. Speak, listen, remembers. Okay. Drawee. Customer, client, buyer, debtor. Okay. Mukund Desai इज द सेलर. आप सोचो कि मैं मुकुंद देसाई हूँ. खरीदार कौन है? योगेश तिलक, स्टेइंग एट पुणे. मुकुंद स्टेज एट नागपुर. 30,000 का डील, 90 डेज, मतलब लाइक 3 months ऑलमोस्ट. 16 जुलाई को बिल बना, डेट ऑफ बिल 20th जुलाई को साइन हुआ. टुडे इन दिस प्रॉब्लम, नॉट इन एवरी प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम, there is somebody called as payee. Shravan Dave, Panvel, different person from a different place. So many would be, सर अभी ये कौन आया? ड्रॉवर ड्रॉई तक तो समझ में आता था, अभी ये पेई कौन है, ये हमको नहीं समझा. वेल, लेट मी एक्सप्लेन टू यू. पति पत्नी मीन और वो पंगा. पति पत्नी में वो पंगा. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन वैसे ही है. हाँ, क्या होता है यहाँ पे कि मेहनत ड्रॉवर ने किया, ड्रॉई ने किया. खरीदने का, बेचने का, भावतोल करने का. मजे का लुत्फ किसने उठाया? पेई ने उठाया. कौन है पेई? अरे उसको पैसा मिलता है. ओ, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद पैसा किसको मिलेगा? वो पेई होता है. हाँ, तो लास्ट टाइम वाले लेक्चर में पेई कौन था? लास्ट टाइम वाले लेक्चर में लिखा था मी और माई. तो ड्रॉवर को ही पैसे चाहिए थे, तो उसने लिखा मी और माई, तो वो ही पेई था. बट टुडे अ थर्ड पर्सन इज द पेई. वेरी इंपॉर्टेंट, अ थर्ड पर्सन इज द पेई. ऐसा चलता है? क्यों नहीं चलता है? दिस इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इट इज नॉट अ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट. तू और मैं और कोई नहीं. नहीं, पति पत्नी और वो होता है इसमें कभी कभी. सो पर्सन हु गेट्स द पेमेंट और हु इज डायरेक्टेड टू बी डन द पेमेंट. द ड्रॉवर अबाउ मुकुंद. एक मेरे को इसको अगेन लेट मी पुट इट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ना, तो इट्स अ लिटिल बिट बेटर इन अंडरस्टैंडिंग. ओके, मुकुंद उस तरफ है, ही स्टेज इन नागपुर. दिस इज योगेश, ही स्टेज इन पुणे. पैसे योगेश को देने पड़ेंगे क्योंकि वो कस्टमर है. बट मुकुंद क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं मांगता है, मला नहीं पाहिजे, मेरे को नहीं मांगता. तू पैसे योगेश, तू पैसे, थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करेगा तो, आप कृपया करके पैसे श्रवण दावे को दो. वो रहता है पनवेल में, मुझको मत दो. तो यू कांट यूज इन दिस सम मी और माई, चेंज करना पड़ेगा. सो इन दिस आई एम नॉट शोन श्रवण दावे सिंस ही इज नॉट द मेन पर्सन. हाँ, बाकी मजा उसको मिलेगा क्योंकि पैसा उसके पास जाएगा. बराबर. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि सर डील इनके बीच में हुआ तो पैसे श्रवण को क्यों मिल रहे? उसने ऐसा कौन सा बड़ा
तोप का काम किया. If I have to pay you 10 rupees, सोचो, you have to pay your friend 10 rupees. मैंने पैसे तेको दिए, ओके, और फिर तू पैसे वही तेरे दोस्त को देता है. तो ये तो लंबा चक्कर हो गया ना, लंबा चक्कर. सोचो आप क्लास में नहीं आए, आपका दोस्त आ गया, तो आई कॉल यू अप एंड आई आस्क, I have to give you 10 rupees and you have to pay your friend. Your friend has come. Can I pay your friend directly? But if you say नहीं, मैं आऊँगा 4 घंटा 5 घंटे बाद, मेरे को हाथ में पैसा देने का, बाद में मैं मेरे दोस्त को दूंगा. अरे काय को टाइम पास कर रहा है, इतना लंबा चक्कर, इतना स्टोरी को आगे बढ़ा रहा है. तेरे को दूंगा, तू तो उसको देगा ना यार, तो मैं डायरेक्टली दे देता हूँ. तो इट्स लाइक दैट कि बाबा, अगर आप पैसे किसी को देने वाले हो और वो कोई और किसको वही पैसा देने वाला है, तो आप ही डायरेक्टली दे दो ना. ये क्या बीच में पोस्टमैन का काम करना है, टाइम बच जाएगा. वेरी सिंपल. पेई इज देयर इन एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज. समटाइम्स द ड्रॉवर, द सेलर इज द पेई. बोलते हैं मेरे को पैसा दो, ओके, एंड समटाइम्स ही डायरेक्ट्स द ड्रॉई, द कस्टमर. नहीं, उसको पैसा दो, नहीं उनको पैसा दो, उसको उनको भी वो डिपेंड करता है. इन दिस प्रॉब्लम श्रवण दावे. तो ये जो श्रवण दावे का नाम है, वो जो पैराग्राफ है उसमें आएगा, और किधर ऊपर नहीं आएगा और किधर नीचे नहीं आएगा, उसका तो साइन भी नहीं आएगा, उसको बस पैसा मिलेगा 90 डेज के बाद. सो लेट मी स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. तो ऑलवेज व्हेन यू आर सॉल्विंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज सम, पहले ना स्टोरी थोड़ा समझ लो, कौन कौन क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हाँ. सोल्यूशन. अबव आई हैव रिटन पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, उसका नाम पेई. मिस्टर मुकुंद देसाई. तो ऐसा सोचो, आई एम मुकुंद देसाई. किधर रहता है? मैं नंबर 14 हेरिटेज हाइट्स, नागपुर. ओके. अमाउंट कितने का है? डेट आ गया 16 जुलाई 2019, 30,000. इतना आप लिख लो एवरीथिंग. देन देयर इज अ पैराग्राफ. यू शुड लीव 3 or 4 लाइन्स एंड देन स्टार्ट द पैराग्राफ. सो थोड़ा गैप रहता है एंड इट ऑब्वियसली लुक्स नीट. ना इन द पैराग्राफ, because this is 90 days, so I'll write 90 days, but my request is please don't write 90, okay, digits में, उसको आप wordings में लिखो, तो वो थोड़ा better रहता है. 90 days after date, Mukund telling the buyer, Mukund telling the buyer, योगेश. 90 days के बाद बॉस, कौन सा? 16 जुलाई के 90 डेज के बाद क्या होगा? आप पैसे दो, मुझको मत दो. वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्योंकि मैं पे नहीं हूं, मैं नहीं हूं पे. मैंने नाम पता लिखा है, श्रवण दावे पनवेल. उसको या तो उसके ऑर्डर को, हिज ऑर्डर, उसको या तो उसके ऑर्डर को. इफ इट इज मी, इट इज माई ऑर्डर. द ग्रामर, द व्याकरण हैज टू बी गुड. I'm not saying 19-20, it has to be good. If it is me, it's my order. If it is him, it's his order. Okay, if it is a girl, it's her order. If it is many people, it is their order. तो मतलब चेंज होते रहता है ना, चेंज होते रहता है. हाँ, the sum of rupees कितना? 30,000 only for the value received. ये तो पुरानी कहानी है. ओनली बीच में वो मी और माई मैंने चेंज किया, नॉट बिकॉज मुझको करना था, क्योंकि द इंफॉर्मेशन इज सच. देर इज अ कैरेक्टर जिसका नाम पेई है, और वो एक अलग कैरेक्टर है, उसका नाम पता इधर ही आएगा और किधर नहीं आएगा. मुकुंद साइन करेगा, वो तो पहले भी करता था. योगेश का नाम पता लिखेगा, वो भी पहला होता था. देन व्हाट विल योगेश डू? योगेश पहले पढ़ेगा, विल रीड. हाँ, 90 डेज बराबर है, ओके. 30,000 बराबर है, ओके. श्रवण दावे मेरे को पसंद है. यू नेवर नो, योगेश बोलेगा नहीं, हमारा उसके साथ 36 का आंकड़ा है. अभी 36 का है, 19 का है, 20 का है, 21 का है, हमको पता नहीं, बट यू नेवर नो. बायर विल से नहीं नहीं नहीं, हम पैसा उसको देता नहीं. अरे फिर तकलीफ हो जाएगा, फिर में भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा.
आई टेल यू, वो भी आज ही होने वाला है। ओके 36 का आंकड़ा नहीं होने वाला, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ऐसा सिचुएशन होने वाला है। हाँ ये ना कौन सा एक्सेप्टेंस है, बायर हैज टू डू एक्सेप्टेंस। ये कौन सा एक्सेप्टेंस है, ये नॉर्मल एक्सेप्टेंस है, नॉर्मल, उसने कुछ बोला ही नहीं, उसने साइन कर दिया एक्सेप्टेड। देखो उसके नीचे उसका साइन भी आ गया, किसका साइन आ गया, योगेश तिलक, एंड द डे ऑन विच ही साइन, वो क्या है 20 जुलाई 2019, दैट्स इट, खत्म हो गया। दिस एक्सेप्टेंस is a normal acceptance, nothing special about it, nothing special about it. This question had what element different, the pay. ओके तो पे को क्या करने का, कुछ नहीं रहो, पैराग्राफ में नाम पता लिख दे उसका, छोकरा रहेगा तो हिज कर लेना, छोकरी रहेगा तो हर कर लेना, दैट्स इट। सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द डे। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड वन। अगेन क्वेश्चन, पेज नंबर, ऑल इंफॉर्मेशन इज इन द टाइटल ऑफ द लेक्चर। अगेन माई रिक्वेस्ट इज फॉर्मेट रेडी रखो, इसमें कुछ अलग होने वाला है, उसका मैंने ऊपर कुछ 1-2 सेंटेंसेस लिख के दिए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ ताकि वो अलग क्यों होने वाला है। दिस इज़ अ वेरी, मैंने फाइनल अकाउंट्स में ये काफ़ी बार मैंने बोला है, कुछ तो गड़बड़ है, दया इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन लुक्स डिफरेंट, क्यों, पैराग्राफ स्टाइल में है, एंड इट नॉट जस्ट फील्स डिफरेंट, इट इज डिफरेंट। पूरा कहानी पहले पढ़ना, कहते हैं ना नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओके रीड द स्टोरी, रीड इट, देन यू विल एक्चुअली कम टू नो द एक्चुअल कल्प्रिट। पढ़ते, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या लिखा है, राहुल सानी, ओके question mark, everyone. Why am I saying question mark? Sir, normally the first 3 problems में we had drawer, so maybe this is drawer. Don't judge a book by its cover. पूरा पढ़ो। Okay, Steven sir, let's read. 86D रविवार पेट नागपुर, चलो नाम दिया है, एड्रेस दिया, कोई ना कोई तो होगा। एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज, गूगली होता है भाई, जब ऑफ स्पिनर लेग स्पिन करता है ना तो डंडी गुल हो जाती है। मैनी स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन ये एक तरीके से बाय हार्ट करके जाते, पहला बंदा ड्रॉ नहीं, अंग्रेजी पढ़िए समझिए। देश से राहुल सानी ने एक्सेप्ट किया, तो वो कौन हुआ, वो हुआ ड्रॉई, वो हुआ क्लाइंट कस्टमर। बिल किसने बनाया, पृथ्वीराज, वो कहाँ पे रहता है, आइकन हाइट्स वार्धा। तो प्लीज मेक श्योर ये आप समझो। ओके तो उन्होंने यहाँ पे घुमा के कहानी दिया, अब हमको घुमा के सॉल्व नहीं करना, हमको तो नॉर्मली सॉल्व करना है, हमको पृथ्वीराज बनना है, स्टेइंग एट आइकन हाइट्स वार्धा फॉर 87,000। तो राहुल ने जो बिल साइन किया, एक्सेप्ट किया, उसने साइन किया 87,000 के लिए। ये मैं इंपॉर्टेंट में रिपीट कर रहा हूं, राहुल एक्सेप्टेड बट फॉर 87,000। यू विल से तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल रहेगा 87,000 का, नहीं आगे पढ़ो। ऑन 30 जुलाई, दैट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। प्लीज याद रखो वो सेंटेंस राहुल के नजरिए से है। राहुल स्टेइंग हियर एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय दिस पर्सन ऑफ दिस मच अमाउंट ऑन 30th जुलाई, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ रीड द थर्ड लाइन, नेक्स्ट लाइन। द बिल वॉज ड्रॉन ऑन 26th जुलाई, दिस इज द डेट ऑफ बिल। इट ऑब्वियसली हैज टू बी पहले ना, पहले, ओके क्योंकि बाद में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। आगे पढ़ो। फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख फॉर 90 डेज आफ्टर डेट। सो 90 डेज तो पता चला, बट ये अमाउंट है ना उसमें थोड़ा गड़बड़ है, बिकॉज यू आर सीइंग 2 अमाउंट्स, दो दिख रहे। सर इसमें 1 लाख भी है, 87,000 भी है,
तो सर आई एम रियली कंफ्यूज्ड, क्या लिखने का? यू सी, बिल जो पृथ्वीराज ने बनाया वो 1 लाख के लिए बनाया, राहुल ने साइन किया 87,000 विच इज लेस. सो इफ यू आर पृथ्वीराज द ड्रॉवर सेलर, आपने बिल में लिखा 1 लाख, पे मी 1 लाख. राहुल सामने से क्या बोल रहा है? मैंने भरेगा 1 लाख. क्यों? पृथ्वीराज तू बुलक्कड़ है, तू भूल गया, मैंने तो ऑलरेडी पहले पेमेंट कर दिया है, 87,000 बाकी है, मैं इतना ही देगा. बराबर है ना? यू सी द शॉपकीपर may forget because he is dealing with so many customers, but if तुमको तुम्हारी जेब से पैसे देने, तुम तो याद रखेगा ना, हर पैसे का, हर पाई का हिसाब रखेगा. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पृथ्वीराज ने जब बिल बना के 1 लाख लिखा, मे बी वो भूल गया कि अरे नहीं 1 लाख नहीं होना चाहिए था, ये एक्चुअली 87,000 है, मेरे को इतना ही पैसा लेने का है. किससे? फ्रॉम द राहुल सानी, बट ही इज डीलिंग विथ सो मेनी पीपल, तो मतलब मिस्टेक हो गया. तो ये मिस्टेक कौन पॉइंट आउट करेगा? द ड्रॉई. ड्रॉई बोलेगा ड्रॉवर को, देखो आपने गलती की है, 1 लाख नहीं होना चाहिए, 87,000 होना चाहिए. इसको कहते हैं कंडीशनल एक्सेप्टेंस. इसके पहले तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल एक्सेप्टेंस, नॉर्मल. ड्रॉई को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे ड्रॉई को थोड़ा नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. व्हाट प्रॉब्लम है? सेइंग नहीं गलत है, 1 लाख इज रॉन्ग, पृथ्वीराज यू आर रॉन्ग, आई विल नॉट पे 1 लाख. हाँ, आई विल पे 87,000, आई एम राइटिंग एंड गिविंग. सो नाउ वेयर डज 87,000 कम? पृथ्वीराज ने गलत अमाउंट का बिल बनाया. तो बिल को बॉलीवुड की तरह ड्रामा नहीं करने का, फाड़ के मुंह पे फेंको, नहीं ऐसा ड्रामा मत करो यार, क्यों पेपर फाड़ने का है? लिख लो ना भाई, तुम 87,000 दोगे, लिख लो. प्लीज नोट, देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स इन दिस, पृथ्वीराज एंड राहुल. देयर इज नो पेई थर्ड कैरेक्टर, पति पत्नी और वो नहीं है. तो यहाँ पे वापस से इट विल बी मी और माई ऑर्डर. लेट मी शो यू द सोल्यूशन. 2 people, बराबर से मैं रखूँ तो पृथ्वीराज इज द वारधा गाय, he is the seller, Rahul is the Nagpur guy and he is the buyer. The question had this sequence जानबूझ के उल्टा. about when the drawee, कौन? the client, customer, okay, puts a condition before acceptance, so what does the drawee say? no amount is wrong, I'm not going to pay that. उसको कहते हैं, ऊपर पढ़ो, क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस. उसको ऐसा नॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं है, क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस. ओके, ये काइंड ऑफ नोट से आप चाहो तो आप लिख लो, बाकी मैं सॉल्व कर देता हूँ ये. हाँ, सो इट्स अ डिफरेंट टाइप, क्योंकि उन्होंने एक पैराग्राफ स्टाइल में दिया. पैराग्राफ स्टाइल में यू हैड टू बी सिलेक्टिव, कौन, कितना, कब. पृथ्वीराज स्टेइंग एट आइकन हाइट्स, वारदा, नागपुर. कौन से दिन पे उसने बिल बनाया? 26 जुलाई 2019. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 लाख. एक्चुअली वो गलत है. एंड यू में से सर वो लिखने का क्यों है अगर वो गलत है? देखो, जब गलती हुई तब जाके कंडीशन पैदा होता है ड्रॉई की तरफ से. इफ पृथ्वीराज डज नॉट डू अ मिस्टेक, तो व्हाई विल राहुल से 87,000? वो क्यों बोलेगा? वो बोलेगा नहीं बराबर 87. तो देयर हैज टू बी अ मिस्टेक इन दिस. गलती होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तब जाके कंडीशन बनता है. ओके, सो आगे जाके मैं कंडीशन पे थोड़ी चर्चा और करता हूँ. अभी के लिए मैं वो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करता हूँ. इसमें पेई, वेल आई एम नॉट सेइंग नहीं है, पेई है, क्योंकि जिसको पैसे मिलेगी वो तो पृथ्वीराज है, उसको पैसे मिलेंगे तो वही पेई है, वही पेई बन जाता है. अभी नहीं, 1-2 महीने बाद. हाँ, what was the time duration, the credit period? 90 days after date. कौन सा डेट? अरे वो 26 जुलाई, उसके बाद. ओके, 90 days. पे मी और माई ऑर्डर,
द सम ऑफ रुपीज 1 लाख ओनली। अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज को तो पता भी नहीं है कि ये गलत है, उसको पता भी नहीं, उसने लिख लिया 1 लाख ओनली। उसने अपना साइन कर लिया। वेरी वेरी आई एम नॉट सेइंग मिस्चीफियसली किया उसने, मे बी उसको पता भी नहीं कि अरे मेरे से मिस्टेक हो चुका है। बट देन यू शुड रिमेंबर और यू शुड नो whenever you look at a bill, any bill of a shopkeeper, at the end they write a lot of terms and conditions. उसमें एक रहता है E&OE, error and omission expected। दुकानदार कस्टमर को बोल रहा है कि सर गलती हमसे हो सकती है, सर हम कुछ भूल सकते हैं, आप हमको बता दो, आप हमको बता दो। तो समथिंग वेरी सिमिलर। पृथ्वीराज ने एक मिस्टेक किया और वो कस्टमर जो है राहुल सानी, कहाँ पे रहता है भाई, 86D रविवार पेट नागपुर। दिस मच पृथ्वीराज ने अननोइंगली गलती करके बट अपना काम कर दिया। ही विल सेंड इट टू राहुल। राहुल छोटा नहीं बड़ा सा बाइनोकुलर्स लेगा और ये देखेगा एंड ही विल से 1 लाख रॉन्ग। हाँ, ड्रामा नहीं क्रिएट करेगा। When he accepts, that is this particular position, accept it, he will write his condition below for rupees 87,000 only. So he is very clearly telling Prithviraj, don't force me to pay 1 lakh, मैं नहीं भरूंगा, मैंने लिखा, मेरे साइन के पहले मैंने कंडीशन लिखा। कंडीशन means what? Many a times a producer, a director goes to an actor and say, see this is the role, but तुमको पतला होना पड़ेगा, तुमको मोटा होना पड़ेगा, तुमको मसल्स पुट ऑन करने पड़ेगी, तुमको तुम्हारा हेड शेव करना पड़ेगा। These are what conditions. If the actor says नहीं मैं नहीं मानता, ओके जा मत काम कर। वेरी सिंपल। कंडीशन पूरा होगा तो काम आगे जाएगा, कंडीशन पूरा नहीं होगा तो काम अटक जाएगा। तो यहाँ पे हु राहुल टेलिंग पृथ्वीराज, देख भाई कंडीशन है मेरा, मैं इतना ही पैसे देगा, मैंने इसके नीचे अपना साइन कर लिया है और द डेट ऑफ सिग्नेचर। इन दिस प्रॉब्लम व्हाट डू यू लर्न? यू लर्न कि कंडीशनल एक्सेप्टेंस क्या होता है। टिल नाउ वी हैव बीन डूइंग नॉर्मल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल में नथिंग स्पेशल माय डियर। दैट कंडीशन, वो जो तकलीफ है कस्टमर को, वो लिख दो ना यहाँ पे एक्सेप्टेड के बाद। टेक्स्ट बुक में एक्सेप्टेड के आगे लिखा है, इट्स ओके। ये पोजीशन है, ये पोजीशन में आपका कस्टमर, आपका तकरार, आपका कंप्लेंट डाल दो। ड्रॉई को बिकॉज दिस विल अगेन गो बैक टू द ड्रॉवर ना, ड्रॉवर पड़ेगा, बोलेगा अरे मेरे से मिस्टेक हो गया, चल 87,000 डन। ओके, कुछ ज़्यादा बवाल होगा तो कोर्ट में जाएगा मामला, बट एटलीस्ट ये इतना तक तो हमको समझना है। I hope the previous question which had a payee. So now in future, okay, all will be a mixed problem. कभी payee आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी normal acceptance आएगा, कभी qualified या conditional acceptance आएगा। आपको सब जब जैसे आएगा वैसे हैंडल करना है। Always keep formats ready. I've done my best that in every lecture I will do 2 problems, okay, ताकि वो इतना कम भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। Okay, let me change my situation here and very quickly remind you, if everything has been understood by you, so I would highly appreciate it if you like the lecture. If you dislike it, I have absolutely no problems. I should not, if I'm on social media, I should be accepting the negative and the positive, both of them, but definitely put across as to what can be the improvement that we can do in our presentation, in our teaching techniques. Do let your friends know about this particular platform, about this particular channel and all the lectures that we are catering to. If you have not subscribed, कर लेना, बेल आइकन दबा देना। जब तक हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल रखना, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सबका ख्याल रखना। Good day to all of you. God bless. Tada.